What all things come under sports journalism? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बाकायदा वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े, जिनको कहते हैं पत्रकार, ठीक है, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में काम करते हैं। स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो माइक पकड़ के अक्सर आपको कैमरे के आगे नज़र आते हैं। So at the age of 17, you said that you got infatuated with this idea of presenting. तो उसके बाद आपको क्या लगा कि यार मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ही अपना करियर बनाना है? Prashant, honestly, I was a kid. I had no idea. I was very new. I was very, very new. Someone wants to make a career in this particular field. तो उसके लिए क्या वो एक रास्ता क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, look up to pursuing that any degree or anything in that particular field? See, if anybody wants to come in the industry of media, particularly in sports, कोई डिग्री की नीड नहीं है। आप ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस लें जितने हो सकते हैं, बाय रीचिंग आउट टू द राइट पीपल। जितने क्रिकेट टूर्नामेंट्स आप कर सकते हैं उतने करें। अगर आपको एंकर बनना है तो दो तरीके हैं। अगर आपको स्टार स्पोर्ट्स तक के पहुंचना है, then the only way out is, now these days you see presenters which have zero knowledge of cricket but still they are preferred over multiple knowledgeable people because they look good. So now it's more of a glamour quotient rather than what knowledge you hold of the cricket. Aajkal things have changed more to gain TRPs, more like a skin show business, more like what Instagram followers a girl holds to become a presenter. Things have changed over a period of time, especially at all the private level leagues. Not at very big levels, but especially at the private level leagues. Hi Janvi, welcome to the Humans of Hindustan podcast show, the Hindustan chapters. You are a sports journalist, so usually it's the other way around. You interview people. Right. So how do you feel sitting on the other side? I feel absolutely amazing because usually I'm the one asking questions and, asking about their stories and experiences and match performances. So it's good to be on the other side of the coin. Okay, I'm sure it must be, it will turn out to be good and exciting. Hope so. Yes, hoping so. So Janvi, let's begin by telling our audience about your journey, as in your childhood and your upbringing. So I started very young. When I was 17, I thought of coming in the field of sports. So it was very, it was very unexpected because one day what happened, I was in class 9th and I was watching some IPL match and I saw a lady, she was Mayanti Langer. I saw her in front of the camera interviewing all big names and cricketers, and it was so fascinating to look at her. It was so dignified, that women standing in the field of male and interviewing people with so much of dignity. So that inspired me a lot. Then onwards it was like my motivation. I want to do something of that sort, but as in when you progress in the industry, you see, it's not limited to only presenting. The industry is huge. So as in when I paved my way, there were multiple other options as well. So the concept of presenting is what infatuated you in the beginning. That's what drove you into this particular जी, field. क्योंकि काफ़ी अट्रैक्ट किया था हमें जब मैंने प्रेजेंटिंग देखी थी मयंती लैंगर को माइक पकड़ते हुए इंटरव्यू करते हुए। दैट वाज द पॉइंट ऑफ फैसिनेशन। बट एज एन व्हेन आप आते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप देखते हैं कि इंडस्ट्री सीमित एक स्तर पे नहीं है, काफ़ी और चीज़ें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड देन यू फील कि ओ दिस वाज अ ऑप्शन यू नेवर न्यू अबाउट, बिकॉज ये इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या क्या डेजिग्नेशंस हैं, क्या क्या जॉब्स हैं। एंड जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में आते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, तब आप समझते हो कि अरे ये भी काम हो सकता है, वो भी काम हो सकता है। तब मेरा जो शिफ्ट हुआ वो प्रेजेंटिंग से ज़्यादा डिजिटल में हुआ। Okay, so let's take it back a little further. So at the age of 17, you said that you got infatuated with this idea of presenting. तो उसके बाद आपको क्या लगा कि यार मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ही अपना करियर बनाना है? और अगर आपने ये डिसाइड किया था तो what steps you really took at that point in time to make sure कि I land up here? Prashant, honestly, I was a kid. I had no idea. My parents are into
complete different businesses. My dad is into pharma business, my mom is a makeup artist, fashion industry. I had no idea मेरे घर में कोई cricketer नहीं है, मेरे घर में कोई politician नहीं है, that it was a easy way for me. ना मेरा भाई ऐसा था जो क्रिकेटर्स के साथ रणजी मैचेस या किसी स्तर पे खेला हुआ हो कि मेरे लिए इजी हो जाए टू गेट इन द इंडस्ट्री या क्या. आई वॉज़ वेरी न्यू, आई वॉज़ वेरी वेरी न्यू. मैं हिंदुस्तान के ऑफिस में गई थी और वहाँ पे देयर वाज दिस जर्नलिस्ट एंड मैंने उनको जाके बोला आई वांट टू डू समथिंग इन क्रिकेट. मैं 17 साल की थी उस टाइम पे. सो ही सेड किड है, बच्ची है, क्या कर लोगी तुम. आई सेड मुझे कुछ कराओ आप, आई डोंट नो बट आई वांट टू डू समथिंग, मुझे इंटर्नशिप आप चाहे दे दो. देन ही सेड कि ओके चलो ठीक है, फ़ोटो खींचनी आती है. सो मैंने शौकिया अपने फादर से फ़ोटोग्राफी लर्न की थी उस टाइम पे. तब उसके बाद जो है मैं फ़ोटोग्राफी सीखते 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 मैं कैमरा चलाना तो आ ही गया था. मैंने बोला चलिए ठीक है हम लोग फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं जाके. तो मैदान पे गए उस दिन एंड रणजी का मैच था, यूपीसीए वर्सेस हिमाचल. तो वो पहला मेरा मैच था जो मुझे एज ए फ़ोटोग्राफ़र शूट करने का मौका मिला था. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड इन द न्यू स्टेडियम, इकाना क्रिकेट स्टेडियम. सो वहाँ से मेरा ऐसा जर्नी स्टार्ट हुआ. सो लेट्स सपोज जानवी, इफ समवन, बिकॉज आज की डेट में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक अपने आप में एक अलग ही फील्ड बन चुकी है, विद सो मेनी पीपल आर आइंग फॉर इट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट. तो अगर किसी को, इफ समवन वांट्स टू मेक अ करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उसके लिए क्या वो एक रास्ता क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, हाउ शुड दैट पर्सन लुक अप टू परस्यूइंग दैट एनी डिग्री और एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर. See, if anybody wants to come in the industry of media, particularly in sports, काफ़ी और ऐसे करियर्स है. बट अगर मीडिया में स्पेसिफिकली आना है, सो मीडिया में आने के लिए कोई डिग्री की नीड नहीं है. मीडिया में आने के लिए अगर आपको जो मैं कर रही हूँ उस टाइम पे डिजिटल, दैट यू शुड लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया. आप क्रैश कोर्सेज कर लें, आपको सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए. आप यूट्यूब से देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. आप ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंसेस लें जितने हो सकते हैं, बाय रीचिंग आउट टू द राइट पीपल. जितने क्रिकेट टूर्नामेंट्स आप कर सकते हैं उतने करें. अगर आपको डिजिटल में जाना है तो. अगर आपको प्रेजेंटिंग में जाना है, अगर आपको एंकर बनना है, तो दो तरीके हैं. अगर आपको स्टार स्पोर्ट्स तक के पहुंचना है, देन द ओनली वे आउट इज़ टू बी द बेस्ट इन द मार्केट. आप प्रैक्टिस करें बोलने की, कमेंट्री करने की, एंकरिंग करने की, मिरर के आगे जितने व्लॉग्स हो सकते हैं, जितनी कमेंट्रीज़, मतलब जितने भी मैच एनालिसिस हो सकते हैं उनके वीडियोस बना बना के डालें. एंड आपका बोलने का स्टाइल, आपके प्रेजेंट करने का स्टाइल क्लिक किया, देन ऑब्वियसली यू कैन गो अप टू लेवल ऑफ स्टार स्पोर्ट्स. बट इफ़ अगर आपको स्टार स्पोर्ट्स का लेवल नहीं, अगर काफ़ी प्राइवेट लीग्स वगैरह भी होती हैं, तो प्राइवेट लीग्स में अब सिनेरियो चेंज हो गया है. पहले काफ़ी था कि पीपल वांटेड to have a presenter who had a knowledge of cricket. Now it's not like that anymore. Things have changed over a period of time, especially when I talk about private leagues happening all around the world, not at ICC or BCCI level, but at like all the private leagues that are happening. अब उसमें क्या है, it's more of a glamour business if you want to become a presenter. So now these days you see presenters which have zero knowledge of cricket, but still they are preferred over multiple knowledgeable people because they look good. So now it's more of a glamour quotient rather than what knowledge you hold of the cricket. It's nothing to do with cricket anymore in terms of private leagues. But agar yes, if you want to try at star sports level or maybe at something like Sony level, then for sure cricket knowledge is important. So what you are trying to say is कि knowledge भी ज़रूरी है, उसके साथ आप यूट्यूब वीडियोस या ऑनलाइन जितने भी नॉलेज आप ले सको वो भी लो. एंड देर आर कोर्सेज एज वेल विच यू कैन परसू. Right. For courses for इन the स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. yeah. In sports journalism, as in if you want to come in the digital part of this sports, then you have to undergo courses and everything. अगर आपको presenter बनना है तो presenter के लिए आज सच कोई courses नहीं है. It totally depends आपका command language पे किस पे ज़्यादा अच्छा है, हिंदी पे है, इंग्लिश पे है, कोई रीजनल लैंग्वेज पे है, क्योंकि अभी आप देखते हैं हाल ही में जियो पे इतने रीजनल लैंग्वेजेस की एंकरिंग कमेंट्री चल रही है.
और हर जगह ही, बल्कि ऑल ओवर इंडिया इतने स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. सो वहाँ पे लैंग्वेज का कमांड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नॉलेज अबाउट एनी डिग्री और क्रैश कोर्स और एनीथिंग. सो देश में जितने भी ये मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं, बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सो यूजुअली लोगों के जहन में ये रहता है, एक परसेप्शन रहता है कि अगर हम मास कॉम के कोर्सेज कर लें तो प्रॉब्ली हमारे लिए राह आसान हो जाएगी इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. हाउ ट्रू इज़ दैट? ऑनेस्टली मेरे को किसी ने मतलब किसी कोर्स ने हेल्प नहीं किया था. मेरे को मेरे प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स ने बहुत हेल्प किया है. आई वॉज नेवर द वन हु वॉज bookworm, like always into books and always into courses. I went to London, I did my BA in sports media. Honestly, it did not help me because मैंने दोनों साइड से देखे हुए हैं, है ना, तालीम हासिल करके भी और बगैर भी. मेरे ख्याल से जितना आपको प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एक्सपोजर हेल्प करता है, आपको कोई किताब नहीं सिखा पाती है वो. एंड अगर आप मीडिया जर्नलिज्म, अभी हम डिजिटल में हैं, देखिए मीडिया के भी काफ़ी सेक्टर्स हैं. प्रेजेंटिंग एक अलग फील्ड है, डिजिटल एक अलग फील्ड है, जर्नलिज्म पर्टिकुलरली एक अलग फील्ड है. जर्नलिज्म के लिए तौर तरीके होते हैं जो ऑब्वियसली आपके कॉलेज में कैसे न्यूज़पेपर राइटिंग होती है, कैसे आर्टिकल राइटिंग होती है, हेल्प करता है कहीं ना कहीं. डिजिटल के लिए आपके जितने भी यूट्यूब क्रैश कोर्सेज हैं, AIs हैं, आजकल AI, वो तरीके के कोर्सेज हेल्प करते हैं. और प्रेजेंटिंग में तो खैर आपका बोलना बालना, बातचीत करना, आपके लैंग्वेज कमांड, वो सब हेल्प करता है. So whenever any person, he or she looks at sports journalism or hear this word sports journalism, तो काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहते हैं लोगों के जहन में कि यार स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है तो प्रॉब्ली शी मस्ट बी एन एंकर और ही मस्ट बी एन एंकर या कमेंटेटर. तो यहाँ पे एक आप इसको एक्सप्लेन करो कि व्हाट ऑल थिंग्स कम अंडर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. देखिए, हम आपको एक सही तरीके से बताते हैं. हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो बाकायदा वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े जिनको कहते हैं पत्रकार, ठीक है, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में काम करते हैं. सही, वो होते हैं जर्नलिस्ट. जो आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स लिखते हैं, वो होते हैं जर्नलिस्ट. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो माइक पकड़ के अक्सर आपको कैमरे के आगे नज़र आते हैं, डूइंग एंकरिंग एंड ऑल दैट, राइट. स्पोर्ट्स कमेंटेटर वो लोग होते हैं जो क्रिकेट का बैकग्राउंड का नॉलेज रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्स रणजी प्लेयर हैं या फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, तो आज हमें उस गेम की टेक्निकल नॉलेज होगी, तो हम कमेंट्री पे जाएंगे. प्रेजेंटिंग और कमेंट्री में भी अंतर होता है. प्रेजेंटर्स यूजुअली टेक्निकल नॉलेज के साथ नहीं आती हैं. दे आर द पीपल हु कम्युनिकेट द आइडियाज़ बिटवीन the fans. They act as a bridge between the fans and between the people who have knowledge of the game. उन दोनों का जो ब्रिज होता है वो एक प्रेजेंटर करती हैं पूरा. कमेंटेटर्स आर द वंस जिनको खेला हुआ एक्सपीरियंस होता है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हो गए या खुद उन्होंने वो स्पोर्ट खेला हो, तब वो नॉलेज आई हो, ठीक है, वो रुचि आई हो, तो वो कमेंटेटर में चले जाते हैं. जो आप यूजुअली जब मैच चल रहा होता है, आप जो पीछे से वॉइसेस सुनते हैं, वो होते हैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर. मैच ख़त्म होने के बाद जो आप पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ देखते हैं या मिड इनिंग्स ब्रेक देखते हैं, उसमें जो एंकर जाती हैं वो प्रेजेंटिंग होती है. जर्नलिस्ट स्टेडियम में एक पर्टिकुलर सेक्शन बना रहता है जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट बैठते हैं, ठीक है. सारे लाइन से न्यूज़पेपर्स जितने भी कवरेज के लिए आते हैं, उनके जर्नलिस्ट को एक पर्टिकुलर बॉक्स दिया जाता है स्टेडियम के कोने में. वो लोग वहाँ पे बैठ के अपने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं. इसी मीडिया में एक तीसरी फील्ड है, वो है डिजिटल की. अब डिजिटल वो लोग होते हैं जो फील्ड पे भी रहते हैं और मेजरली होटल में प्लेयर्स के साथ काम करते हैं. जितना भी आपको इंस्टाग्राम पे मिर्च मसाला दिखता है, वीडियोस, फोटोज़, प्लेयर्स नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रैपिड फायर कर रहे हैं, तरीके तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, AI आ रहा है, वो सारा काम मीडिया का रहता है, डिजिटल वालों का. सो वो एक अलग सेक्शन है. सो स्पोर्ट्स मीडिया ही अपने में 3-4 जगहों पे बटा हुआ है. Okay, so whenever someone is entering into this particular field या is pursuing mass communication, तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि
किस किस एरिया में कौन कौन सी स्किल सेट चाहिए, और उस बेसिस पे दे कैन दे कैन sharpen their skills, or they can work on it depending on that particular field. एक्चुअली जब आप एंटर करते हो ना, तो एंटर करते हुए बहुत लोगों को पता नहीं होता. 90% पीपल ओनली नो what anchoring or commentary is, because that is something on the camera. People are very much fascinated and starstruck by that designation. Why? Because it makes you famous. It's around the cricketers, so everybody is like, oh, I want to pursue this, I want to become an anchor, I want to become a commentator. While on the other side of the industry, there are multiple designations and multiple roles one can pursue in order to be around the field, in order to follow their passion, in order to stick to their favorite sport. It is not just anchoring वो famous हो गया है because इंडिया में क्रिकेट इतना famous है, तो कोई भी especially girls हमारे यहाँ की, they are so much starstruck by cricketers, so everybody wants to become an anchor these days. You see multiple models turning out to be anchors these days. So अब anchoring का definition have changed over a period of time. पहले जब anchoring start हुई थी, you see मंदिरा बेदी, ठीक है, फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स में जो आई थी एज अ एंकर. मयंती लैंगर. आप इन लोगों से बात करते हैं तो इन लोगों का नॉलेज, इन लोगों ने जो इतने सालों से कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट्स में, इट्स वेरी नेक्स्ट लेवल. आजकल थिंग्स हैव चेंज्ड मोर टू गेन TRPs, more like a skin show business, more like what Instagram followers a girl holds to become a presenter. Those things have changed over a period of time, especially at all the private level leagues. Not at very big levels, but especially at the private level leagues. So you said that आपकी इस पर्टिकुलर फील्ड में जो रुचि आई थी, वो आई थी बाय लुकिंग एट मयंती लैंगर ऑन स्क्रीन. तो आई एम श्योर ग्रोइंग अप आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा होगा स्पोर्ट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिकेट में. तो तभी आपने शायद देखा होगा मयंती लैंगर को ऑन स्क्रीन. मैंने सिर्फ ऑनेस्टली एक IPL मैच में देख रही थी, एंड आई सॉ हर देयर, एंड it somehow got into my eye. I want to do the same thing which this lady is doing. At that point in time, were you aware who is she? नहीं, I had no idea. Trust me on this, I'm on the camera, I won't even lie. काफ़ी हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो एक स्तर पे बैठे हैं, काफ़ी नाम है उनका. आप उनके साथ इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ खींच के डाल देते हो, बट इन रियल लाइफ दे वोंट इवन हेल्प यू टू मूव अ पेन, ठीक है. बट there is a lot of respect for this lady. Why? Because there was a time where I had no idea कि क्या करना है, no idea, because I was a fresher. यहाँ पे जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए होता है ना कि नीट पास करो, MBA MDA, वो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है. Everything is based on contacts, connects and research, ठीक है. मैंने उनको 25 लाइन्स के पैराग्राफ लिख के दिए थे. उस टाइम पे मेरा कॉलेज भी नहीं स्टार्ट हुआ था. आई आस्क्ड हर कि मैं कौन सा कॉलेज करूँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ कि लंदन जाऊँ, पढ़ाई करूँ ना करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. ट्रस्ट मी, जो एक इंसान अपने एक पद पे पहुँच चुके होते हैं ना, उनका कह सकते हैं उनकी कला, उनकी अना इतनी बड़ी हो जाती है ना कि दे डोंट इवन फील लाइक रिप्लाइंग टू पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, ठीक है. बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स. लोग सोचते हैं मैं इतना स्ट्रगल करके एक स्तर पे पहुंच गया हूँ, मैं दूसरे को क्यों आसानी से मदद करूँ. ये लोगों की अक्सर मेंटालिटी होती है, बट उनका एकदम अलग था. मैंने उनके लिए 25 लाइन का पैराग्राफ लिखा था, बैक 5-6 ईयर्स, 5-6 साल पहले की बात है. और उन्होंने मेरे को शायद से 30 लाइन के पैराग्राफ में रिप्लाई किया, नॉट इवन 2 लाइनर्स. मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट्स है, मेरे पास 2 क्रिकेट की किताब है, मैंने उनकी पूरी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लेके उसमें पेस्ट किए हुए थे. बिकॉज शी वॉज सो हम्बल, शी इज़ सो गुड बाय नेचर दैट कोई भी अचीवमेंट होता है मैं उनको इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालती हूँ कि मैम मैंने ये किया, मैम मैंने वो किया, एंड हमेशा उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस आता है. शी इज़ इन टच. एंड उससे पहले भी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज तो बाय गॉड्स ग्रेस महादेव की ब्लेसिंग है कि एक नाम कर लिया है, एक लेवल पे पहुँच गए. लेकिन जब स्टार्टिंग में कुछ भी कोई भी नहीं जानता था, आई वॉज नो वेयर, लाइक नो बडी. तब उन्होंने मुझे उस टाइम पे उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, एंड इतने बड़े लेवल पे हो के भी वो मेरे को इतने मेरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स के उतने ही बड़े बड़े मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हैं. सो इट्स गुड, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. आई एम वेरी मच, आई लाइक हर एज अ ह्यूमन अ लॉट.
it's not even about the profession. It's more like as a किसी के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं ना, किसी की एक आप नियत से आकर्षित हो जाते हो. So it was like that with her. Since you know, as a kid, if I talk about Janvi as a kid, I'm sure सबके कुछ ना कुछ role models होते हैं. So, who did you know look up to while you were growing? Whether it was someone from the sports fraternity or someone from journalism fraternity, It or was Mayanti Langer. while growing up. Yes, yes, yes. But you said that you just saw her when you were 17, right? या फ्रॉम देन ओनली आई मुझे तभी से ही समझ आया एक्चुअली. So उससे बिकॉज पहले आप cricket उससे नहीं पहले देखते थे? नहीं, उससे पहले कोई क्रिकेट से मेरा रिश्ता नाता नहीं था. Okay. आई वॉज नॉट फॉलोइंग द स्पोर्ट. सो उन्हीं को ही देखा, उन्हीं को एडमायर किया. उससे पहले क्या आप क्या कुछ तो सोचते हो यार मुझे ये करना है बड़े होके? उससे पहले तो बच्चे थे. 16 साल 17 साल में तो काम स्टार्ट किया था. 14-15 साल में क्या ही सोचते क्या करना है. इतना कुछ था नहीं दिमाग में 14-15 साल में तो. Also, Janvi, you run your own media agency as well by the name of Spotify, which particularly deals in sports. So tell us about that journey. How did that happen? So, long story. So, I was working with one of the corporates that work with IPL, and by God's grace, I got a break for IPL, and मैंने बहुत कुछ सीखने मिला. बहुत कुछ मैंने उनके थ्रू सीखा, बहुत कुछ IPL से सीखा, बहुत कुछ कॉर्पोरेट फ्रीलांस कर करके जॉब्स कर करके सीखा. व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम द एज कितना 17 साल से हमने शुरू किया था. तो 17 साल की एज में भी काफ़ी कॉर्पोरेट करने को मिला. दिल्ली रहे, ABP न्यूज़ में भी काम किया, क्रिक ट्रैकर के लिए भी काम किया, क्रैक्स एक ऐप है फ़ोन पे, इफ़ यू हैव हर्ड, उनके लिए भी काम किया. सबसे बड़ा ब्रेक IPL का मिला. IPL से बहुत कुछ सीखा, लाइक वेरी गुड लर्निंग्स. एंड फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अब अपना कुछ सेटअप करना है, क्योंकि जो चीज़ अपनी होती है ना वो अपनी ही होती है. नो बडी कैन जस्ट से द नेक्स्ट डे आई डोंट फील यू हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट, यू वॉक अवे. नहीं, आई हैव सीन ऑल ऑफ इट. मुझे पता है ये इंडस्ट्री आज आपकी है, कल आपकी नहीं है. आज कॉर्पोरेट में पीपल आर देयर विथ यू, है ना, और शाबाशी से ज़्यादा बदनामी है. सो आई ऑलवेज़ प्रेफर अपना खुद का काम करो, खुद की आप नाम करो, पहचान करो. आप कम करो सही है, लेकिन जो करो वो खुद का करो. उस पे पूरा उस पूरे कारोबार पे आपका हक हो पूरी तरीके. सो मेरा थॉट प्रोसीजर ऐसा था, इसलिए आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑफ माई ओन. तो स्पॉटिफाई शुरू कर दी. Okay. Also, we have seen that you were associated with T20 World Cup. Right. I mean your agency Spotify. Tell us about that experience. How did that happen? Well, that was amazing experience. So 2025 went very bad for me. 2025 की रात 31st नाइट हम मंदिर में थे. I was just crying in front of God that 2025 went so off for me, and I want to leave the industry. I want to leave everything because काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. एंड देन आई आस्क्ड महादेव कि मेरे हक़ में वो सब चीज़ें करना जो मेरे हक़ में बेहतर हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो. हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए 2000 आई थिंक सो 2023 या 2023 आई गेस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. मैंने तब भी ट्राई किया था, नहीं हुआ. उसके बाद फिर मैंने 2025 में बहुत सोचा कि चीज़ें बेहतर हों, वर्ल्ड कप के लिए ट्राई करते हैं, बट वो मोटिवेशन नहीं आ पा रही थी क्योंकि 2025 में सब चीज़ें ख़राब जा रही थी. फाइनली जब मैंने 31st की रात आई, न्यू ईयर्स की रात आई, एंड देन आई वाज लिटरली क्राइंग एंड ऑल दैट. एंड देन पता नहीं मेरे अंदर से एक फीलिंग आती है व्हेन यू आर वेरी गॉड्स चाइल्ड. एक अंदर से फीलिंग आती है दैट 2026 विल बी योर ईयर. यू मैनिफेस्ट, इट विल हैपन. एंड ट्रस्ट मी, मैंने कोशिश दोबारा करी वर्ल्ड कप के लिए, एंड इट हैपेंड. आई गॉट अ न्यूज़, इट हैपेंड. आई वाज ट्राइंग फॉर द वर्ल्ड कप सिंस सो लॉन्ग, एंड एक मेरे अंदर से गट फीलिंग थी, एंड
महादेव से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि 2026 इज़ गोइंग टू बी माई ईयर, एंड इट इज़ माई ईयर, एंड टच वुड भगवान करे आगे भी मेरा ही साल जाए ये. So how did you got that gig? So basically a long story there also. काफ़ी लोगों से connect करना पड़ता है. You have to connect the right people, you have to connect the right dots to get into the place. So ऐसे ही हुआ, एक से एक बात करके इधर मेल किया, अलग अलग जगहों पे मेल किया, एसोसिएशंस को मेल डाला, आईपीएल मतलब आईसीसी को मेल डाला, हर जगह मेल्स किए, सब चीज़ें की. एंड देन एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जो आपके रिवर्ट आ जाता है, ओ वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल एंड वी वांट टू डू समथिंग लाइक दैट. सो उनको आइडिएशन, उनको प्रपोजल अच्छा लगता है, तो ऐसे करके मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए वो मिल गया. Take us through your initial days of Spotify. जब आप उसको establish कर रहे थे, तो what all challenges you had to face in terms of getting your first set of clients? मैंने जब कंपनी अपनी शुरू की थी, उसी के जस्ट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे 1 महीने बाद अपना क्लाइंट मिल गया था. सो फ्रीलांसिंग में तो हम काम कर ही रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि लोग हमें जानते नहीं थे. लोगों को मेरा नाम पता था, काफ़ी लीग्स भी उससे पहले कर चुके थे, लेकिन एज ए फ्रीलांसर करते थे. उसके जस्ट बाद जैसे ही हमने अपनी कंपनी डाली, इस्टेब्लिश करी, उसके जस्ट बाद 1 महीने बाद अंदाज़न हमें अपना पहला क्लाइंट मिल गया था. तो उनका काम करते करते एक्सपोजर मिला और बाकी लोगों ने जाना, ऐसे करते करते आए, बिल्ट गुड क्लाइंटल. So if I may ask the name of the first client? It was Rajasthan Kings. They were my first clients. Yeah. So मैं एक टूर्नामेंट में थी, so I was heading the entire social media in that tournament. And उस टूर्नामेंट में उनका एक फ्रेंचाइज था, so they were franchise owners. It's related with cricket only? Yeah. So they were related to cricket. So they were my first clients, राजस्थान किंग्स. फिर उनके काफ़ी दुनिया भर में काफ़ी लीग्स हुई, टूर्नामेंट्स हुई, तो हर जगह हम ही उनका सोशल मीडिया करने लगे. एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट अ गुड एक्सपोजर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड थिंग्स. उससे पहले भी हमने काफ़ी काम किया था, बट एज अ फ्रीलांसर किया था, तो हमने अपना जितना भी तजुर्बा था फ्रीलांस का वो ला के अपने कंपनी में खड़ा कर दिया. ऐसे करके लोग भी मिलते रहे, सही लोग मिलते रहे, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें लर्न करी कि कैसे कंपनी में काम होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं. होते होते इस्टेब्लिश हो गई है. राजस्थान किंग्स, या ये कौन सी टीम है? मतलब आई हैवंट हर्ड अबाउट इट. सो अपार्ट फ्रॉम, एज आई सेड, अपार्ट फ्रॉम आईपीएल और अच्छा, ये स्टेट लेवल का है ये? सो स्टेट लेवल का नहीं होता. सो these are basically all the private leagues that happen. Okay. Yeah. What was the name of the league? So where we You got your first set of client in Rajasthan Kings, right? okay, so it was Legend 90. That was a league which was happening in Sri Lanka. So उनकी टीम थी उसमें. So all the good players like Robin Uthappa, if you've heard, Munaf Patel, all these people were playing in that team. So उनका वहाँ पे श्रीलंका में he purchased a team, the team owner, and वहाँ से हमें अपना पहला काम मिला. So how Spotify is different from other sports agencies that are there in the market? What what different they are offering to their clients? See, in the industry, everybody has a different set of individuals working, okay, and they are doing good for themselves. So there is no comparison as such. मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकियों का काम फारिग का है और हमारा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सब अपनी उतनी मेहनत करते हैं. At Spotify, what you get a lot of experience, because I myself, हमें 7 साल का तजुर्बा इंडस्ट्री में. यू गेट यंग माइंड्स, क्योंकि यूजली जो ओनर्स होते हैं वो एक एज में जाके ओनर्स बनते हैं. यहाँ हम 24 साल में ओनर बैठे हैं बने, और 7 साल का तजुर्बा और पीछे से लेके बैठे हैं. सो एक तो सबसे पहले मेरा काफ़ी when I work with a lot of things, कि अगर मेरा काम है तो वो काम में आपको गलती नहीं नज़र आएगी. बहुत रेयर होगा कि कोई गलती नज़र आए. एक तो वो मिलता है. साथ में मेरे जितने भी लोग मेरे काम में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो सब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड है स्पोर्ट्स में. ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्लाइंट से पैसे ले लें, कोई भी नॉन एक्सपीरियंस्ड को आगे भेज दें और चीज़ें करवा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता. अगर आप मेरे स्पॉटिफाई मीडिया में आएंगे, आपको हर एक बंदा एक एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा. और अगर वो एक्सपीरियंस के साथ नहीं होगा तो उसकी लर्निंग और उसकी जितनी भी लर्निंग चीज़ें हैं वो इतनी स्मूथ होंगी कि आप उनसे बात करेंगे आपको लगेगा नहीं कि ही इज़ अ फ्रेशर.
सो हम लोग सिखाते भी हैं काफ़ी बच्चों को, वी ट्रेन ऑल्सो कि कैसे कैसे करना है। एंड स्पेशली यूपी में हमने अपनी पूरी टीम यूपी में बनाई है। आपको जितनी भी एजेंसी ज़्यादातर मिलेंगी सब दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बेस्ड मिलेंगी, कोलकाता बेस्ड मिलेंगी। मैंने यहाँ यूपी में रह के ये टीम को क्रिएट किया है, और यूपी में रह के टीम क्रिएट करना इज़ नॉट इजी, क्योंकि यूपी के जितने भी स्किल्ड जितने भी लोग हैं वो सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भाग जाते हैं। जो बच्चे कुछ यहाँ पे रहना चाहते हैं उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना, यूपी में टीम बनाना, लखनऊ में स्मॉल सिटी कंपैरेटिवली वहाँ पे इस्टेब्लिश करना खुद को, ये आसान नहीं होता। सो ये हमने किया है। सो जानवी, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सो ये क्वेश्चन रहता है काफ़ी लोगों को जो परस्यू करना चाहते हैं पर्टिकुलर फील्ड। सो हाउ मच दे एक्चुअली मेक, हाउ फ्रीक्वेंट इज़ देयर अर्निंग्स, इज़ इट ऑन आर्ली बेसिस, इज़ इट ऑन मंथली बेसिस? आप किन की प्रेजेंटर्स की बात कर रहे हैं? As being a sports journalist, whether it's a content writer, whether he or she is writing a column, yeah, whether he or she is presenting, सबकी अलग अलग anchoring. रहती हैं प्रशांत। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सैलरीज एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ सैलरी। So it's on gig basis or? इट्स बेसिकली आई मतलब मेजरली इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पोर्ट्स में यूजली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीज़ें चलती हैं, फ्रॉम लीग टू लीग, फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सो इट्स यूजली दैट इन स्पोर्ट्स। या एंकर्स एंड प्रेजेंटर्स आर, दे यूजली चार्ज ऑन पर डे बेसिस कि पर डे में इतना इतना होगा। सो ये चीज़ रहती है एंकर्स एंड प्रेजेंटर्स के साथ। Okay. Since you are a sports journalist yourself and you have your own agency as well running, so आपको क्या लगता है कि having a agency yourself, does it give you an extra edge on your in your profession? Definitely, because when I sit on the table, I do not sit on the table just wearing makeup and clothes and anchoring. I sit on the table with a certain ideation. I sit with a backing. I sit on the table where I know that how can a followers growth can happen. I sit on the table, know what are the digital strategies which are working in the market, what are the hashtags which are running. So I know my job. I know the technical and theoretical and practical aspects of how digital platforms are working. So even when I present, so एक एक तो क्लाइंट को प्रेजेंटर मिलती है, साथ में पूरा सोशल मीडिया भी मिलता है। सो हम एक पद दो काज कर लेते हैं, तो दोनों ही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रेजेंटर के तौर पे भी और एक सोशल मीडिया पे भी। अक्सर प्रेजेंटर्स जो होते हैं उनको डॉकेट लगता है पढ़ने के लिए, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द स्पोर्ट सो मच। वी यूजली डोंट रिक्वायर अ डॉकेट एंड अनटिल अनलेस देयर आर डेडिकेटेड स्पॉन्सर्स टू स्पीक। अदरवाइज वी एनालाइज द मैच आवरसेल्व्स। ठीक है, खुद भी मैच एनालाइज कर लेते हैं, खुद भी क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं, और ज़्यादातर मेरा जॉब यही होता है, हम क्वेश्चंस दूसरा एंकर को क्रिएट करके दे रहे होते हैं, बिकॉज हमारा काम बैक एंड का रहता है। यूजली जो रहता है वो ऑन द कैमरा नहीं रहता है। जो प्रेजेंटर्स होते हैं उनका ऑन कैमरा रहता है, एंड जितने भी डिजिटल में है, जैसे जो मेरी कंपनी है, उनका बैक एंड का काम रहता है। सो जितने भी डॉकेट्स क्रिएट करने हैं, प्रेजेंटर को क्या बोलना है, क्या कैसे क्या डिज़ाइनिंग होनी है, क्या फ्रेमिंग होनी है, वो जितना भी काम है वो प्रोड्यूसर करता है, वो हम करते हैं। या तो obviously when I sit on the table, I get an extra advantage of that. If I may ask you, how do you define success? Yeah, how do you see success as a presenter? I mean, as a sports journalist and as an entrepreneur. See, success is very personal to everybody. Everybody has different definitions of success. For me, success is, particularly if you ask me, then for me, success is when I'm in a position that I can help genuine individuals to rise in the industry. That is success for me, and I think so I've been very successful, because not because I am मैं एक स्तर पे पहुंची हूँ या मैंने कुछ बहुत अचीव किया है, नहीं। मेरे से बहुत तुर्रम खान बैठे हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत कुछ हमसे ज़्यादा अचीव किया है, बट एटलीस्ट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि जितना भी मैंने किया है, आई हैव नॉट टर्न्ड सेल्फिश टू इट, आई हैव नॉट टर्न्ड I have not folded, I have not turned blind towards people who want my help. And हमने काफ़ी लोगों को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काम करना सिखाया है, उनको
एकदम नए सिरे से चीज़ें सिखाई हैं कि कैसे होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। एंड काफ़ी लोगों को, स्पेशली एक छोटे शहर से, मी कमिंग फ्रॉम लखनऊ, हमें पता है यहाँ पे वैसे भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे उनको वो प्लेटफॉर्म्स देना, उनको इस प्लेटफॉर्म से ग्लोबली एक्सपोजर देना, सो आई थिंक सो दैट इज़ सक्सेस फॉर मी, वेयर यू आर इन अ पोजिशन, बी इट इन एनी पोजिशन, be it even you're a prime minister, be it even if you're a clerk, any position you are, but still you can help other people. That is success for me. And I've seen in this industry that a lot of people have very big positions than what I am having, or I may have achieved even इतना, and वो इतने होंगे मेरे से, लेकिन तो भी मेरे को एक चीज़ ये पता है कि अगर मैं किसी इंसान की हेल्प कर पा रही हूँ और अगर वो हमें दुआएं दे रहा है कि चलो इसकी वजह से हमारा काम लग गया या इसकी वजह से हमने कुछ कमा लिया, दैट इज़ सक्सेस टू मी. हमारे लिए वो सक्सेस नहीं है कि हम एक स्तर पे जाके बैठ जाएं और दुनिया दिन के लिए आंखें मुंह बंद करके मूंद के बैठ जाएं. दैट इज़ नॉट सक्सेस टू मी. अगर हम एक स्तर पे हैं तो हमें ऊपर वाले ने इसलिए वो मुकाम दिया है कि हमारे थ्रू हम किसी की हेल्प कर सकें, तो उस मुकाम को पूरी तरीके से इस्तेमाल करें. दैट इज़ समथिंग. हर किसी के लिए नहीं, बट येस, जिसको लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन है, मेहनती है, बार बार फॉलोअप ले रहा है, बार बार लगा ही हुआ है, खुद से भी करा जा रहा है, खुद से भी अच्छी चीज़ें हासिल किया जा रहा है, देन व्हाई नॉट टू हेल्प दोज इंडिविजुअल्स. ये So let me ask you, what are your long-term goals? If I may ask you, as a sports journalist and as an entrepreneur, what are your long-term goals? See, I honestly, the long term goal is to take my agency very big in future, like to get into IPL projects and everything. I want IPL tenders for my agency. That is my goal eventually. Personally, if you ask me, I want to get into BCCI. I want to be I want to work for BCCI. That's my end goal. एक बार मुझे काम करना है, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू लाइक, मेरे को ऐसा कोई शौक़ नहीं कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉयर रहूँ, बट क्योंकि मैंने बहुत बचपने से मैनिफेस्ट किया है कि मेरे को मीडिया में काफ़ी बड़ा नाम चाहिए, चाहे एज एन एंकर हो, चाहे डिजिटल में हो, चाहे कैसे भी हो, मीडिया में बहुत बड़ा नाम चाहिए. और बीसीसीआई में 4 ऐसी सिर्फ पोजीशंस होती हैं मीडिया मैनेजर्स की, 4 या 5 जो रहती हैं. उसके अलावा उनके पास और मीडिया मैनेजर्स की पोजीशंस अवेलेबल ही नहीं होती हैं. सो आई वांट टू बी one of the media managers of BCCI. That is very competitive. That very limited, no openings, nothing. That is very competitive. So ये हमारा further goal है कि individually हमें अपने लिए करना है and company के लिए IPL tenders लेके आने हैं. That is something which I'll say. So now, since we are talking about sports media and journalism, so what do you think how the sports media is shaping nowadays in terms of in this age of digital world? How is it shaping and what's the future of sports media? I think so. It's shaping beautifully, and as in when the sports is growing, you see, apart from cricket, the level of recently we have seen multiple medals India athletes are getting in Olympics and everything, and sports is growing at a very good level. We are expanding. Khelo India इतना बड़ा हो गया है, Olympics इतना बड़ा हो गया है, अब तो क्रिकेट भी खैर इन्वॉल्व होने वाला है, सब चीज़ें हैं. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, काफ़ी लोगों को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ग्राउंड्स की टीम इतनी बड़ी हो गई है, ऑपरेशंस की टीम इतनी बड़ी हो गई है, डिजिटली इतना एक्सपैंड कर रहे हैं, एआई आ रहा है, तो काफ़ी लोग एआई से भी काफ़ी चीज़ें सीख के आ रहे हैं. अब तो लोगों के काफ़ी पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट हो गए हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गए, उनकी अर्निंग्स सिर्फ मैच के एनालिसिस बता के उनकी अर्निंग्स इतनी अच्छी हो गई हैं. सो स्पोर्ट्स बहुत तरीके से आपको हेल्प कर रहा है. एंड आने वाले टाइम पे जो है, एज एन व्हेन द थिंग्स ग्रो, people will be getting involved in sports at a very good level also. We'll be getting multiple we'll be getting so many individuals at good level जो आके कहीं ना कहीं अच्छे स्तर पे contribute करेंगे स्पोर्ट्स में. Talking about sports, since we are talking about cricket, so do you think कि sports journalism अब इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो it's limited to only cricket? Well, I wouldn't say that because अगर if in you're terms of exposure.
इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, सी इफ़ यू आर अ जर्नलिस्ट, ठीक है, अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आपको हर स्पोर्ट्स कवर करना है, ठीक है। आप यू कांट लीव एनी स्पोर्ट बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पब्लिकेशन, आप एक पब्लिकेशन से जुड़े हुए हो। सो आपको सारे स्पोर्ट्स का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जब नया व्यक्ति कोई भी पब्लिकेशन ज्वाइन करेगा, दैनिक, TOI, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी अमर उजाला, आप कोई भी पब्लिकेशन, आप न्यूज़ चैनल या पब्लिकेशन आप ज्वाइन करोगे, आपको इन जनरल सारी ही स्पोर्ट्स के पैकेजेस बनाने के लिए बोलेंगे, सारे ही स्पोर्ट्स के आर्टिकल्स लिखने के लिए बोलेंगे। सो अगर इफ़ यू आस्क मी पर्टिकुलरली जर्नलिस्ट, जो आपने हमसे पूछा जर्नलिस्ट का, तो सारे स्पोर्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, फिर उसके बाद अगर आप डिजिटल में हैं तो डिजिटल में भी आप डिजिटल में तो खैर नॉलेज से ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिजिटली आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, सोशल मीडिया का नॉलेज होना, मेटा का नॉलेज होना, गूगल का नॉलेज होना, SEO का नॉलेज होना, SMO का नॉलेज होना, ये सब कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्प करता है रादर देन द नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट। मतलब नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट भी होनी चाहिए, बट ये सब चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती है। तो अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं मीडिया में भी, एक तरीके की मीडिया नहीं है। ब्रॉडकास्ट अलग होती है, डिजिटल मीडिया अलग होती है। सो देयर मल्टीपल फील्ड्स ऑल्सो, डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ पे है, आपको कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी। मोटिवेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में उस लेवल का एक्सपोजर होना जिस लेवल का एक्सपोजर क्रिकेट में है आज की डेट में, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन, आई डिडंट टू गेट यू। परस्यू दैट करियर इन अ लॉन्गर टर्म। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो ब्रॉडकास्टिंग या कोई भी चीज़ होती है वो स्पोर्ट्स की ही होती है, वो ऐसा नहीं होता वो क्रिकेट की है, ठीक है। जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग ये सोच के नहीं शुरू करते कि हमें आज एंकरिंग मिलेगी, तो हम अगर आज फॉर एग्जांपल आप हैं, आज आपको सोनी चैनल से ऑफ़र आएगा, आपको एक बॉक्सिंग का मैच कवर करना है, क्या आप उसके लिए मना कर देंगे? आप बोलेंगे नहीं, हमें क्रिकेट दीजिए तभी हम कवर करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? आप अपॉर्चुनिटी देखोगे, आप सोनी चैनल पे चले जाओगे। बट माय पॉइंट इज़ कि जो बॉक्सिंग की जो ऑडियंस है या किसी भी और स्पोर्ट की जो ऑडियंस है, फुटबॉल की, हॉकी की, वो शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी क्रिकेट की है। तो क्रिकेट के अराउंड जितना भी ये जर्नलिज़म का जो भी ये फील्ड या जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो उनको जितना फ़ायदा क्रिकेट में है, आई एम श्योर कि उतना फ़ायदा बाकी स्पोर्ट्स से नहीं उठा पा रहे होंगे वो। बाकी स्पोर्ट्स धीरे धीरे ग्रोइंग स्पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में। जितना पैसा क्रिकेट में है उतना पैसा बाकी स्पोर्ट्स में नहीं है। आप चाहे एथलीट्स का आप फीस स्ट्रक्चर देख लो, सो वही, राइट? इसके पीछे रीज़न क्या है इसके पीछे क्या रीज़न है, अकॉर्डिंग टू देखिए, यू? हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड द कंडीशन? सी इट्स इम्प्रूविंग डे बाय डे। गवर्नमेंट आ रही है, दे आर सपोर्टिंग खेलो इंडिया ऑल्सो। काफ़ी एथलीट्स हैं जो ओलंपिक लेवल पे भी काफ़ी सपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड हुआ, लखनऊ में ही हुआ, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे ये सब शूट हो रहा है, वहाँ पे मिस्टर योगी ही केम एंड उन्होंने काफ़ी सम्मानित किया। वहाँ पे क्रिकेट में इंडियन मेंस क्रिकेट टीम से सिर्फ कुलदीप यादव थे, उसके अलावा जितने भी और एथलीट्स थे और जितने भी और चीज़ें थी वो जो थी वो काफ़ी ओलंपिक्स के एथलीट्स थे। हमारा विमेन क्रिकेट काफ़ी डाउन था पहले, अब रिसेंट में जब से वर्ल्ड कप आप देख रहे हो कितना सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला, लोगों ने सपोर्ट किया। विमेंस क्रिकेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना ग्रो हो गया, पहले कहीं नहीं था बट ग्रो किया। सो इट्स नॉट दैट कि क्रिकेट जो है इट्स लाइक कि बाकी और स्पोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, इट्स जस्ट दैट बाकी ग्रोइंग स्पोर्ट है। क्रिकेट इतने टाइम से खेला जा रहा है, इतना पुराना स्पोर्ट है, हमेशा घर घरों की टीवी पे, हर गलियों में, बड़े से छोटे कहीं पे भी आप चले जाएं, एक क्रेज़ है क्रिकेट का इंडिया में, ठीक है। यही स्पोर्ट आप फुटबॉल आप अगर देखो तो फॉरेन कंट्री में उसका क्रेज़ है। अब फॉरेन कंट्री में जाके तो आप नहीं पूछोगे कि क्रिकेट क्यों नहीं, वहाँ क्रिकेटर्स को कोई जाने ना पहचाने ना। फॉरेन कंट्री में आप चले जाओ, वो सड़कों पे घूमे तो कोई डिस्टर्ब करने भी ना आए, तो फॉरेन कंट्री में उल्टा है। तो हर कंट्री टू कंट्री का एक जो हिस्ट्री चलती आ रही है, एक जो स्पोर्ट फेमस है वो चलता आ रहा है, आप उसको एकदम जड़ों से नहीं हटा सकते। आप ये नहीं कह सकते अरे क्रिकेट क्यों फेमस है, क्रिकेट है, वो हिस्ट्री ने आपको बताया कि वो फेमस है। फुटबॉल बाहर फेमस है, वो फेमस है। बास्केटबॉल काफ़ी बड़ा है,
NBA एक, अब तो IPL ने ओवरटेक कर लिया, लेकिन NBA तरफ सबसे एक्सपेंसिव जो लीग होती थी वो NBA होता था एक टाइम पे। बास्केटबॉल काफ़ी बड़ा था। सो हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का एक अपना एक स्पोर्ट है, उस कंट्री में वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो काफ़ी बड़ा होता है हर एक अपनी कंट्री के लिए। और इंडिया में क्रिकेट है एंड वो आप नहीं हटा सकते हो। उसके साथ बाकी के स्पोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रहे हैं, एज इन वैन धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। एंड काफ़ी हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है एथलीट्स को, ओलंपिक्स को, खेलो इंडिया को काफ़ी बड़ा करने के लिए। विमेंस क्रिकेट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो मेंस क्रिकेट के बराबर कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी पहले ऐसा नहीं था, पहले जनता का सपोर्ट ही नहीं था, तो विमेंस क्रिकेट के लिए फंड्स नहीं रेज होते थे। आज BCCI इज पेइंग सेम अमाउंट टू द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम एंड इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। सो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है कि आज वो स्टेडियम जो विमेंस क्रिकेट का कुछ अरसे पहले बिल्कुल भरा नहीं होता था, आज RCB के मैच में जब से स्मृति मांदना ने जाके कप उठाया, आज पूरा RCB का स्टेडियम भरा हुआ था वहाँ पे। सो अब लोग चीयर कर रहे हैं अपनी देश की लड़कियों के लिए भी, काफ़ी गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है अपनी देश की लड़कियों को ग्रो करने के लिए, ओलंपियंस को ग्रो करने के लिए। सो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं उस स्तर पे। But in terms of coverage, you also believe that TRPs matter the most या in terms of broadcasting. ऑब्वियसली TRPs तो क्रिकेट पे ही हैं, Correct. यू कांट डिनाई दैट, देयर इज नो डिनायल इन दैट। That is the reason behind या the lesser TRPs coverage of क्रिकेट other पे भी sports. हैं। स्लॉट ISL को भी मिल रहा है, जियो स्टार पे या सोनी पे, और स्लॉट हो सकता हो IPL को भी मिल रहा हो, ठीक है। हो क्या सकता हो मतलब है ही है स्टार स्पोर्ट्स पे, जियो स्टार्स पे, ठीक है। लेकिन फ़र्क अगेन TRPs का है कि जो TRPs आज एक IPL और एक क्रिकेट फैच कर सकता है, वो इंडिया में अभी फुटबॉल नहीं कर पाया, वो अभी नहीं कर पाया। हो सकता है आने वाले टाइम पे जेनजी जनरेशन चल रही है, आगे और जनरेशन आए, विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट। If I may ask you just a wild thought, कि क्या ऐसा वो रेवोल्यूशन चाहिए इन अदर स्पोर्ट्स कि लोग उनको भी देखना, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया विमेंस क्रिकेट का, तो उसमें रेवोल्यूशन लाया लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीत के। आई एम श्योर जब वो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तब भी शायद उसकी TRP उतनी नहीं थी जितनी आफ्टर द सेमीफाइनल बढ़ गई थी। सो एक वो रेवोल्यूशन आया वहाँ पे जिससे कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू वुमेन्स क्रिकेट एज वेल। तो ऐसा क्या रेवोल्यूशन चाहिए हमें और भी स्पोर्ट्स में जिसमें कि लोगों का इंटरेस्ट बने देखने में? देखिए क्रिकेट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवोल्यूशन आ रहे हैं क्रिकेट में भी, ठीक है। पहले टेस्ट सबसे बड़ा क्लासिक फॉर्मेट माना जाता था, टेस्ट से T20 पे काफ़ी लोग आ गए, राइट। T20 काफ़ी पॉपुलर होने लगा, इसलिए IPL जैसी लीग्स आई। T20 के बाद T10 की भी काफ़ी लीग्स होने लग गई। ऐसे मुझे लगता है हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ चेंज करके, अभी प्रो रेसलिंग लीग हुई थी, मतलब वी आर इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सो वी कीप गेटिंग अपडेट्स। प्रो रेसलिंग लीग हुई थी, उसकी TRPs काफ़ी अच्छी गई, इट वॉज़ वेरी फेमस। एक से एक सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे थे प्रो रेसलिंग लीग में। आप देखो टेनिस प्रीमियर लीग होती है, ठीक है, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग होती हैं, पिकल बॉल लीग्स होती हैं, ठीक है। ये जो अदर स्पोर्ट्स हैं, पिकल बॉल बहुत ग्रो कर रहा है, उसमें सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। प्रो रेसलिंग में एक से एक सेलिब्रिटीज़ आपको देखने मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं सिर्फ सीमित हैं क्रिकेट तक के। आप देखते हो सुनील शेट्टी, मिस्टर सुनील शेट्टी हो गए, ठीक है, उनकी काफ़ी टीम्स हैं अदर स्पोर्ट्स में। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, रितेश देशमुख हैं, उनकी टीम्स हैं काफ़ी अलग स्पोर्ट्स में। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रिकेट को ही जो है प्रमोट किया जा रहा है या क्या है, और स्पोर्ट्स पे भी तवज्जो दी जा रही है। और रही बात रेवोल्यूशन की, एज एन व्हेन धीरे धीरे स्पोर्ट्स में कुछ रूल्स बदलेंगे, कुछ थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, लोगों की रुचि आएगी देखने की। शॉर्ट फॉर्मेट्स पे आजकल जनता ज़्यादा इंट्रीग होती है, जो शॉर्टर फॉर्मेट्स वाले गेम्स होते हैं उसमें ज़्यादा TRPs मिलती हैं। तो धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आएंगे तो लोग उधर भी आकर्षित होंगे। आवर नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी, राइट। राइट। वो क्यों पीछे रह गया लॉन्गर रन में, हाँ, और क्रिकेट ने कैसे उसको ओवरटेक कर लिया? मैं वही बता रही हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिकेट पॉपुलराइज इसलिए भी हो गया क्योंकि क्रिकेट में ग्लैमर क्वेश्चन भी काफ़ी आ गया,
ठीक है। जब आईपीएल ललित मोदी जी ने स्टार्ट किया, द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, टू गेटिंग चीयर लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस, टू ऐड अ लॉट ऑफ ग्लैमर, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें, तो होते 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 क्रिकेट उस टाइम पे एकदम पॉपुलराइज, उससे पहले भी काफ़ी पॉपुलर था क्रिकेट। हाँ काफ़ी पॉपुलर था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने T10 के फॉर्मेट्स आ गए, 90 बॉल्स के फॉर्मेट आ गए, तरीके तरीके के एवोल्यूशन आ गए हैं क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट आ गया। जस्ट टू सर्वाइव द स्पोर्ट, क्योंकि अब टेस्ट मैच आज की डेट में उतनी पॉपुलर क्वेश्चन नहीं, पॉपुलैरिटी क्वेश्चन हाँ, उसकी कम हो रही मैं है। वही कह रही हूँ, इवन वो वनडे इतना वनडे मैचेस। इतना इतना एवोल्यूशन हुआ ना क्रिकेट में। अब आप समझो, एक बाकायदा एक टूर्नामेंट होता है ISPL के नाम से, जो टेनिस क्रिकेट के लिए होता है, मतलब टेनिस बॉल से वो पूरा टूर्नामेंट खेला जाता है। एंड उसमें सारे जितने भी टीम ओनर्स हैं, वो सैफ अली खान, करीना कपूर एंड सब लोग आते हैं, अजय देवगन है उसमें, एंड सब लोग ये सलमान खान की टीम थी अब की बार। सो अब आप सोचो कि क्रिकेट में यहाँ तक की चीज़ें हैं कि टेनिस बॉल से वो खेला जा रहा है। तो ये स्पोर्ट अपने में भी काफ़ी चेंज करके, Competitive भी है। कंपेटिटिव करके काफ़ी चेंजेस अपने में ये स्पोर्ट्स लेके आया है। तो हर तरीके से लोग जुड़े होते हैं। सो इट वुड बी राइट टू से कि जो भी इनोवेशंस आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, वो सब क्रिकेट को प्रायोरिटी रख के क्रिकेट में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज उसमें हमें एक्सपोजर ज़्यादा है, उसमें हमें रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो यस क्रिकेट में ज़्यादा है, बिकॉज द मार्केट, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, देन यू हैव टू, इफ़ यू हैव टू सी द पॉपुलर स्पोर्ट, इट इज़ क्रिकेट। You have been a sports presenter. So let's say if you were given an opportunity or a choice between presenting for a cricket match and presenting for a football or a hockey match. मैं सबसे पहले तो क्रिकेट पे ही जाती। मैं उसकी होलसेल वजह बता दूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आज क्रिकेट एक आदमी देखे, चाहे 1 लाख देखे, चाहे करोड़ों की आबादी देखे। मेरे लिए, मैंने जब फील्ड में कदम रखा था, वो एक क्रिकेट स्टेडियम से रखा था। वो ये सोच के रखा था कि मुझे वो लेडी जैसा कुछ करना है। ये सोच के नहीं किया था कि वो लेडी क्रिकेट का कवर कर रही है, कि वो हॉकी का कवर कर रही है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट लेडी स्टार्टेड एज अ फुटबॉल प्रेजेंटर। शी वॉज नॉट अ क्रिकेट, yes, she was not a cricket presenter. She married Stuart Binney, which is a cricketer, and उनके एक father-in-law is Roger Binney, that was the former president for BCCI. But उन्होंने शुरुआत जो की थी वो फुटबॉल से ही की थी। वो ग्लोबली जाके उन्होंने उनकी जो बाहर की तालीम है, उन्होंने बाहर जाके काफ़ी ग्लोबल स्पोर्ट्स कवर किए हैं, तब वो क्रिकेट में आई हैं। सो सेम गोज़ विथ मी। इट वॉज़ नॉट कि मेरे को क्रिकेट में जाना है कि मुझे कहाँ जाना है, इट वॉज़ कि मुझे ये प्रोफेशन करना है। वो प्रोफेशन अगर आज मुझे हॉकी में भी मिलता, आज मुझे क्रिकेट में भी मिलता, मुझे कहीं पे भी मिलता, मैं वो प्रोफेशन के लिए ऑप्ट करती। नाउ वाई आई चूज़ क्रिकेट, बिकॉज वो प्रोफेशन मुझे मिला क्रिकेट के माध्यम से, क्योंकि जो पहला कदम हमने रखा वो क्रिकेट स्टेडियम में रखा, हॉकी स्टेडियम में नहीं रखा। सो इसलिए मेरे लिए क्रिकेट विल ऑलवेज बी स्पेशल। आज क्रिकेट की पॉपुलैरिटी आज ज़्यादा है। आने वाले मे बी जनरेशन्स, जो जेन जी जनरेशन्स है, या आगे वाली और जो जनरेशन्स है, वो फुटबॉल को सपोर्ट करें। पैटर्न चेंज हो जाए, 20 साल बाद हो सकता हो फुटबॉल इंडिया में पॉपुलर हो जाए। मेरे लिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा क्रिकेट ही रहेगी, बिकॉज वहीं से आई स्टार्टेड अर्निंग, दैट वाज माय ब्रेड एंड बटर, दैट वाज द फर्स्ट स्टेडियम आई एवर वेंट इनटू, दैट वाज क्रिकेट। सो मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट द स्पोर्ट, इट इज़ अबाउट जिसने मुझे, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वो गेम क्रिकेट था, वो प्रोफेशन वो था वहाँ से। अब वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट ओनली। मुझे एक बात बताओ जानवी, व्हाट रोल डज सुपरस्टिशन प्ले इन अ स्पोर्ट लाइक क्रिकेट? It plays a very big role, not only in cricket, I'm just in I'm anybody's life. just asking this question because अभी जब सोलर एक्लिप्स था कुछ टाइम पहले, जी, है ना, तो उन उसमें लोगों ने, हाँ, हाँ टीम प्रैक्टिस, को प्रैक्टिस के लिए जाना था शायद। हाँ, नहीं करने दी थी। हाँ, तो वो जी जस्ट बिकॉज ऑफ द वो टाइम ड्यूरेशन जो था, जी वो जी, ख़त्म हो जाए शायद, उसके बाद हाँ प्रोबेबली हाँ, दे और कैन काफ़ी एंटर। जर्नलिस्ट वेट करते रहे थे कि ये करेक्ट क्या करेक्ट है। आई मीन हाँ, ऐसा कुछ सिनेरियो वहाँ पे राइट, क्रिएट हुआ था। जी जी जी, वो हुआ था। एंड आई टोटली बिलीव ऑन दैट, बिकॉज हमने काफ़ी क्रिकेटर्स को भी देखा है, कुछ कुछ वो सुपरस्टिशन से या रिलेटेड कुछ कुछ करते हैं, या समवेयर दे कैरी अ हैंकी इन देयर या पैंट्स एंड समथिंग लाइक दैट। नो कैप, ये चीज़ें होती हैं,
मतलब आई पर्सनली बिलीव इट, हम बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में, लगता है नज़र, वहम, शक, हमें ये सब चीज़ें बहुत लगती हैं. सो अगर कोई चीज़ एक है जो आप एक फॉलो करते हो और अगर वो चीज़ आपको अच्छा करवा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक रोज़ एक माथा टेक के जा रहे हो और अगर आपके शतक या 50 या कुछ बन रहा है, देन वो क्या क्या मतलब आप यू कैन डू इट राइट, आप वो कर सकते हो. कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, वो वाला हाल होता है कि इंसान पत्थर के आगे भी अगर माथा टेकने लग जाए ना और वो उसके बाद उसके काम बनने लग जाएं, पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग दैट एज वेल. वो वहाँ पे उसी पत्थर पे जाके माथा टेक के हर काम करेंगे और ये चीज़ होती है. इट इज़ वेरी ट्रू. तो इट्स वेरी प्रिवलेंट इन क्रिकेट. Yeah, in cricket and generally my life also. Whenever I go out, I make sure I नज़र ऑल्सो इज़ वेरी रियल. आप जब भी आई वेन एवर लाइक अभी वर्ल्ड कप की बात हम आपको बताते हैं. वर्ल्ड कप जब हम करके आए थे, हमने 14 मिर्चियाँ जलाई थी घर पे आके आके आकर नजर उतारने के लिए. नज़र उतारने के लिए 14 मिर्चियाँ. और आप समझे उसमें एक घास नहीं थी. वाई 14? सो 7 यूजली यू बर्न, ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग आई डोंट नो, बट 7 यूजली होती हैं कि 7 मिर्चियाँ जलाई जाती हैं. मैंने 14 जलवाई थी डबल क्योंकि इम्पैक्ट के लिए. डबल उसके लिए कि मुझे पता था 100% नज़र लगी होगी, क्योंकि आपको पता लग जाता है थिंग्स डोंट गो योर वे, थोड़ा इधर उधर होने लगता है तो आपको लग जाता है कि कोई जलन के मारे लगाया होगा नज़र. यूजली लग जाती है लोगों की नज़र. सो 14 मिर्चियाँ जलाई थी और एक घास नहीं थी. तो ये चीज़ें होती हैं, सुपरस्टिशन, वहम, शक, नज़र, एवरीथिंग इज़ वेरी रियल. आपको पता नहीं होता. आई हैव तो सीन, मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं. सो आई बिलीव इन ऑल दिस. तो डू यू फॉलो अ पर्टिकुलर सुपरस्टिशन व्हेन यू गो आउट ऑन द फील्ड? नो, आई डोंट फॉलो एनी सुपरस्टिशन, बट वेन एवर आई कम बैक आई मेक श्योर कि मैं अपनी नज़र ज़रूर उतरवाऊँ. दैट इज़ अ फॉर श्योर थिंग. सी, नजर उतारना इज अ डिफरेंट थिंग. व्हाट आई एम हाँ, इंटरेस्टेड मैं इन मैं नोइंग, समझ गई कि कुछ कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ जो आप हाँ, करते हो. टोटका नहीं, ऐसा ऐसा कुछ. कोई टोटका नहीं है, ऐसा कोई टोटका नहीं ओके है. ओके, या बट प्लेयर्स डू एंड पीपल डू, राइट? हाँ, लोग करते हैं एंड इफ इट वर्क्स देन करने में क्या बुराई है. Okay. या Okay. या Cool. Now coming on to our next section, which is rapid fire section. So Janvi, sports journalism or entrepreneurship? एंटरप्रेन्योरशिप. Cricket or football? क्रिकेट. Rohit or Virat? विराट. क्या मैं जान सकता हूँ why did you choose Virat? आई जस्ट लव हिम एज अ लवर बॉय. Okay, I mean in sports if I'm talking about. या बट आई लव हिम एज लाइक क्रिकेटर तो दोनों ही बराबर के हैं, रोहित एंड विराट दोनों ही. एंड बट अच्छी बात यह है कि आई अडोर विराट एज अ लवर बॉय ऑल्सो अ लॉट. लाइक Just that reason you chose या Virat? या Okay. जस्ट दैट रीजन. Okay, so because my next question is coming, Virat in ODIs or Joe Root in tests? विराट इन ओडीआई. Okay. Abhishek Sharma or Vaibhav Suryavanshi as openers? आई थिंक सो अभिषेक. Abhishek. Okay. T20I World Cup or 50 over World Cup? T20 World Cup for me, because that was my opportunity to firstly work with the cricketers. Like that was my first opportunity where I took my agency. So for me, it's T20 World Cup. Okay. Smriti Mandhana or Lauren Bell? Smriti Mandhana. Okay. Olympics or World Cup? World Cup. So Janvi, if you were not in this particular field, then what would you be doing? What would I be doing? I think so I would be into some sales kind of a job, because I talk a lot and मैं कोई भी चीज़ बेच सकती हूँ ऐसे. like you tell me I can sell this glass to you. yeah, so I think so कुछ sales में ऐसा मेरा काम हो जाता. अच्छा. Okay. So let's say if your life is a sports movie, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? If my life Is a sports movie, sports movie. movie based on sports, अच्छा. तो उसका टाइटल क्या होगा? failure. Okay. Surprising. Failures. Failure would be the title of your movie. Yeah, because I personally feel कि a lot of failures actually shape you to a person people जिनके लिए तालियां बनाते हैं. आपके फेलियर्स आपको वो शख्सियत बनाते हैं जिनके लिए लोग तालियां बजाते हैं. आपका सक्सेस नहीं होता, आपके फेलियर्स होते हैं. आप रोज़ मरते हैं और रोज़ खड़े रहते हैं
आपको एक चीज़ नहीं हासिल होती, 2 चीज़ नहीं होती है, तीसरी नहीं होती है, चौथी पे भी आप खड़े रहते हो, वो आपको हासिल हो जाती है, उसके लिए लोग शाबाशियाँ देते हैं. सो आई थिंक सो फेलियर्स आर द वंस विच शेप यू टूवर्ड्स योर सक्सेस. तो सक्सेस की तालियाँ नहीं होती हैं, वो ये तालियाँ होती हैं कितने फेलियर्स झेलने के बाद भी इंसान खड़ा रहा है. सो आई थिंक सो my title, I want to term it as failures, because real success for me is somebody who faces their failures every day and still they're very adamant for the fact that they want to keep going and keep hustling and keep removing all the negativity, and they want to do good for themselves. Okay, Janvi, it was amazing talking to you. I got to know so much about sports journalism, Yeah. and I'm sure our audience might have also learned something about sports journalism and how to pursue careers in it. So thank you so much for being here, and I wish you really all the best, and hope you can get more clients as part of Spotify, Thank you. and also you get more international gigs as well. Thank you. And may you continue to progress in this particular field. All the best. Har Har Mahadev.